Hello everyone, welcome to Drishti Judiciary's Law MCQs program. Practice questions covering legal current affairs, general knowledge and previous year questions. So let's begin today's episode. First question is, which article of the Constitution of India deals with the power of the Parliament to amend the Constitution? Article 224, Article 315, Article 368 और आर्टिकल 389। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद की संविधान में संशोधन करने की शक्ति से संबंधित है? अनुच्छेद 224, अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 368 या फिर अनुच्छेद 389। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, आर्टिकल 368। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 368। Article 368 grants Parliament the power to amend the Constitution and procedure therefore. This power of the Parliament is subject to the basic structure of the Constitution. अनुच्छेद 368 संसद को संविधान और उसकी प्रक्रिया में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। संसद की यह शक्ति संविधान के मूल ढांचे के अधीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which list deals with the subject related to foreign affairs under the Constitution of India? Union list, state list, concurrent list और none of the above? भारतीय संविधान के अंतर्गत विदेशी मामलों से संबंधित विषय किस सूची में है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या फिर इनमें से कोई नहीं? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, यूनियन लिस्ट। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, संघ सूची। The Union List, which is List 1, is mentioned under the 7th Schedule of the Constitution of India. Subjects related to foreign affairs come under the Union List. संघ सूची जो सूची 1 है का उल्लेख भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। विदेशी मामलों से संबंधित विषय संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। Next question, which section deals with the provision for the bail for under trials under the भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता? Section 469, Section 479, Section 489 और Section 499? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत विचाराधीन कैदियों के लिए जमानत का प्रावधान किस धारा से संबंधित है? धारा 469, धारा 479, धारा 489 या फिर धारा 499? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सेक्शन 479। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, धारा 479। Recently, in the case of re-inhuman conditions in 1382 prisons versus Director General of Prisons and Correctional Services and others, the Supreme Court held that Section 479 of Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita would apply retrospectively to the under trials across the country. Section 479 of the BNSS is the replacement of Section 436A of the Code of Criminal Procedure. हाल ही में 1382 जेलों में पुनः अमानवीय स्थितियां बनाम महानिदेशक कारागार एवं सुधार सेवाएं एवं अन्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 479 देश भर के विचाराधीन कैदियों पर पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होगी। बीएनएसएस की धारा 479 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 436A का प्रतिस्थापन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which section of the Arbitration and Conciliation Act 1996 provides a time limit for an arbitral award? Section 29A, Section 29B, Section 30A और Section 30B? मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की कौन सी धारा मध्यस्थता अवार्ड के लिए समय सीमा प्रदान करती है? धारा 29A, धारा 29B, धारा 30A या फिर धारा 30B? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, सेक्शन 29A। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, धारा 29A।
Recently, in the case of MS Chinar Steel Industries versus Ircon International Limited, the Delhi High Court held that the time limit under Section 29A of the Arbitration and Conciliation Act is not applicable to arbitral proceedings commenced as per Section 21 prior to the 2015 amendment. Section 29A of the Arbitration and Conciliation Act 1996 provides a time limit for an arbitral award. हाल ही में मैसर्स चिनार स्टील इंडस्ट्रीज बनाम इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने माना कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 29A के तहत समय सीमा 2015 के संशोधन से पहले धारा 21 के अनुसार शुरू की गई मध्यस्थता कार्यवाही पर लागू नहीं होती है। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 29A मध्यस्थता अवार्ड के लिए समय सीमा प्रदान करती है। लास्ट क्वेश्चन, अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, facts forming the same transaction are known as dash, plea of alibi, admission, res geste और dying declaration। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के तहत एक ही लेन देन से संबंधित तथ्यों को डैश के रूप में जाना जाता है। अन्यत्र की दलील, स्वीकृति, रेस कैस्टे या फिर मृत्यु पूर्व घोषणा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, रेस कैस्टे। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रेस कैस्टे। Under Section 6 of the Indian Evidence Act 1872, facts forming the same transaction are known as res geste. Section 4 of the Bharatiya Sakshi Adhiniyam 2023 deals with facts forming the same transaction. भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 6 के तहत एक ही लेन देन से संबंधित तथ्यों को रेस गैस्टे के रूप में जाना जाता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 4 उसी लेन देन से संबंधित तथ्यों से संबंधित है। Now is the time for practice question. In which Supreme Court case it was held that preamble is the basic structure of the Constitution? Minerva Mills versus Union of India, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, चंद्र भवन वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर और नाकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सर्वोच्च न्यायालय के किस मामले में यह माना गया है कि प्रस्तावना संविधान की मूल संरचना है? मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, चंद्र भवन बनाम मैसूर राज्य या फिर नाकारा बनाम भारत संघ। Send the answer of this question in the comment section. Stay tuned for more such updates. इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। धन्यवाद।